Hi and welcome everyone. So I really welcome you from the bottom of my heart. In fact, it's a warm welcome to all of you that you have taken out your precious time today to learn something very important in your life. And that important thing is happiness. This is the one thing each one of us strive for. This session will be a combination of Hindi and English. Hope that is fine with you guys. So my name is Nilesh Goswami, as you know, and I am a technocrat who has turned into a happiness rewiring coach. I am an internationally certified stress management professional and #1 best-selling author of my book 7 Secrets to Get Your Dream Life. I am an active member of International Stress Management Association, India chapter, ISMA India. I am an ex-IAS officer of 2000 batch, and by qualification I am an engineer and MBA. And I am on a mission, and my mission is to help at least 1 million people find their true happiness. And everyone in this universe is helping me. In fact, the complete universe is helping me in achieving this mission of mine. So how did I start this mission? See, ये कहानी बहुत थोड़ी सी पुरानी है. It's not that old as well. It's around 2012, 2013, and when I decided that I should do something for myself. I was having everything in my life from others' point of view. ऐसा ही होता है ना, लोगों को लगता है इसके पास बहुत कुछ है. आई वॉज हैविंग गुड जॉब, गुड फैमिली, अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा था जो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से था. बट समथिंग वॉज मिसिंग इनसाइड मी. आई वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल. अंदर से कुछ गड़बड़ चल रही थी. आई वॉज नॉट डूइंग वट आई वॉन्टेड टू डू. सोसाइटी, सोशल प्रेशर और बहुत सारी चीजों की वजह से हम बहुत कुछ काम करते हैं, पर हम क्या चाहते हैं वो हम भूल जाते हैं. ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था. एंड उसका असर क्या हुआ? इट स्टार्टेड हैविंग टोल ऑन माई हेल्थ. मेरा वेट बढ़ गया, 100 kgs का वेट हो गया. आई वॉज वेइंग ऑलमोस्ट 100 kgs. माई ब्लड प्रेशर वॉज हाई, माई शुगर लेवल्स वर हाई, ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन क्रॉस हो गया था. कोलेस्ट्रॉल वॉज हाई, आई साइट खराब होना शुरू हो गई थी. एंड यू कैन सी मी. सो दिस इज हाउ आई लुक्ड लाइक in 2013. And yes, this is me. Few years back, this is my photograph. And this is me now. So don't just see the weight reduction. 2013 में I was looking in a blank thing कि कुछ क्या चाहिए मुझे पता नहीं था. In fact, I was not able to मुझे पता ही नहीं लग रहा था मैं करूं क्या उस समय पे. Until I found my guru. एंड वहां पे मुझे पता लगा कि सीक्रेट्स क्या है हैप्पीनेस के. सो डू यू रियली वांट टू नो दीज सीक्रेट्स? टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स इफ यू रियली वांट टू लर्न दीज सीक्रेट्स. व्हाट आर दीज 3 सीक्रेट्स? सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस कम टू द बिजनेस एंड एकदम से सीधा टारगेट पे आते हैं कि व्हाट आर दीज 3 सीक्रेट्स. एनीवन हैज एनी आइडिया व्हाट एग्जैक्टली हैप्पीनेस इज? How do you define happiness? What is the happiness? Happiness को अगर हमें एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो, एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो, तो हैप्पीनेस है क्या? How can we define what exactly is happiness? बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं कि कुछ लोग हैप्पीनेस को ढूंढता है बाहर, किसी को मनी में मिलती है, किसी को रिलेशनशिप्स में मिलती है, किसी को जॉब में मिलती है, किसी को कहीं और मिलती है. कोई कहता है जी अंदर चले जाओ, बाबा बन जाओ. कोई एक्सटर्नल में जाने को कहता है, कोई इंटरनल जाने को कहता है. अब सिर्फ एक्सटर्नल पे चले जाएंगे तो भी हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, इंटरनल पे चले जाएंगे तो भी हैप्पीनेस नहीं मिलेगी. राइट? सो केतन इज सेइंग फ्रीडम ऑफ व्हाट वी वांट टू डू. अंशु इज सेइंग ट्राई टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज. अनिरुद्ध सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. राइट? सुखवीर इज सेइंग इनर सेटिस्फैक्शन. प्रणीति इज सेइंग स्टेट ऑफ माइंड. Excellent answer, Primiti. Actually, this is the right definition of happiness. Happiness is nothing but a state of mind. It is just a state of mind. And this is the secret number 1. बहुत लोग नहीं जानते हैं कि happiness क्या है. और ये state of mind है, तो how can we achieve this state of mind? किस तरह से हम इस state of mind को create कर सकते हैं? Do you want to know, guys? Just type yes if you want to know how this state of happiness is created. I'll tell you with a model right now कि किस तरह से हमारा माइंड काम करता है और हमारे माइंड से ये हैप्पीनेस क्रिएट होती है. जस्ट ए शॉर्ट वन.
let us imagine this is our mind and there are so many events happening outside. बहुत सारी चीजें बाहर होती रहती हैं और उन इवेंट्स का कुछ ना कुछ आउटकम आता है. मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसने एग्जाम दिया, वो उसके लिए इवेंट है, उसका आउटकम क्या आया, उसका रिजल्ट आया, लेट अस से he or she got 95% of marks, and that is the outcome of that particular event. कोई जॉब में है, उसने सारा साल काम किया, उसको लेट अस से 10% इंक्रीमेंट मिला, and this is the outcome of that particular event. But parallelly there is an expectation in subconscious mind. सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें इस रिजल्ट से ये आउटकम चाहिए. अब वो आउटकम जो होता है वो जब हम परसीव करते हैं, इट डज नॉट गो एज सच. फॉर एग्जाम्पल, अगर सेम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपने पूरा साल काम किया और उसके बाद यू गॉट 10% इंक्रीमेंट, व्हाट इज योर परसेप्शन? इट डज नॉट गो एज सच इन योर माइंड. आपके माइंड में वो 10% नहीं जा रहा है, आपके माइंड में जा रहा है कि वो यार ठीक नहीं है, ये इंक्रीमेंट कम इंक्रीमेंट हुआ है, मजा नहीं आया. राइट? सो ये कम इंक्रीमेंट क्या है? ये आपका परसेप्शन है, ये आपकी इनर रियलिटी है. 10% तो बाहर के लिए है, आपके लिए उस 10% की का मतलब क्या है कि यार मजा नहीं आया, या ये भी हो सकता है यार अच्छा मिल गया, बाकी लोगों को तो 3-3, 4-4% मिला, या मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था 3-4% ही एवरेज होगा इस बार, मुझे 10% मिल गया. सो this is our perception and in subconscious mind there is an expectation. तो ये परसेप्शन जो हमारी बनती है बाहर के आउटकम से और जो अंदर हमारा एक्सपेक्टेशन होता है, इन दोनों का मैच होता है. और जब ये मैच होता है तब एक स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट होती है. ये स्टेट ऑफ माइंड हमारी क्रिएट हो गई. अब ये स्टेट ऑफ माइंड दो तरह की हो सकती है. एक हो सकती है हमारी रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड और एक हो सकती है हमारी अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड. अब ये रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड ही हमारी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड है. अगर ये मिसमैच होता है प्रॉपर, राइट, इट इज अ प्रॉपर मिसमैच बिटवीन द आउटकम्स एंड एक्सपेक्टेशन, बेसिकली द परसेप्शन ऑफ आउटकम्स एंड एक्सपेक्टेशन, देन इट इज अनरिसोर्सफुल स्टेट. लेकिन अगर ये परफेक्ट मैच हो जाता है तो ये हमारी रिसोर्सफुल स्टेट होती है, हैप्पीनेस स्टेट होती है. तो दो कंडीशंस में, और ये जो अनरिसोर्सफुल स्टेट है यही हमारी स्ट्रेस स्टेट होती है, जिसमें हमारे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रेनालिन एंड कोर्टिसोल. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट इन डिटेल इन दिस वर्कशॉप. दिस इज अबाउट द हैप्पीनेस, सो लेट अस फोकस ऑन द हैप्पीनेस. सो जो दूसरा पार्ट है वो रिसोर्सफुल स्टेट है, हैप्पी स्टेट है. यहां पर हमारे हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे डोज जिसको हम बोलते हैं. इसीलिए मैं कहता हूं वी ऑल शुड गेट ए डोज एवरी डे. डोज क्या होती है? डोज होती है डी फॉर डोपामिन, O for oxytocin, S for serotonin and E for endorphins. So जब हमारी स्टेट हैप्पीनेस की स्टेट होती है तब हमारे हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होना शुरू करते हैं. सो ये हमारी फर्स्ट सीक्रेट है कि हमें अपनी स्टेट को हैप्पी स्टेट में रखना है. अगर हम स्टेट ऑफ माइंड, एक्सपेक्टेशन और आउटकम को मैच कर पाए, ऑब्वियसली देन द थिंग इज डन. सो एंड यहीं पे बेसिकली हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का अलाइनमेंट होता है. और जब ये सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का अलाइनमेंट होता है, ओनली इन दैट केस डोर्स ऑफ अबंडेंस ओपन्स फॉर अस. अदरवाइज डोर्स ऑफ अबंडेंस विल कीप शट. हमेशा बंद रहेंगे, वो ओपन तभी होंगे जब सबकॉन्शियस और कॉन्शियस का अलाइनमेंट होगा. दिस इज द सीक्रेट नंबर 1. सो बेसिकली इट इज ए बैलेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल वर्ल्ड. Now coming to the secret number 2. Before going to the secret number 2, let me ask you a question. Why don't some people get what they desire? कुछ लोगों को वो नहीं मिलता है जो वो चाहते हैं. इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं वो उनको मिल जाता है. ऐसा क्यों होता है? Any answer, anyone? Why do people not get what they desire? What can be the reason behind that? Expectations, yes. Lack of focus. Richard, you are a little bit near to that. Om Prakash, more expectation. Let it be more expectation. See, normally we hear that expectations are cause of sorrow. No, it is not expectation of which are cause of sorrow.
It is the unfulfillment of expectation which are cause of sorrow. Pramiti is saying because subconscious mind is not channelized in that direction. Exactly. Because subconscious mind is not channelized in that direction because we do not know whether that is the direction of our where we want to go. Let me share with you a story. एक बार एक शेपर्ड होता है and the shepherd was actually शीप्स को लेके जा रहा होता है अपनी, और वो शीप्स एक, दिस इज एक्चुअली रियल स्टोरी, वो शीप्स को लेके जा रहा होता है. पंजाब में फिरोजपुर के पास एक गांव है, वहां की स्टोरी है, ये बहुत साल पुरानी स्टोरी है. और वो शीप्स उस पुल को पार कर रही होती है जो कि नहर पे बना होता है. एक नहर के ऊपर पुल होता है और उस पुल के साथ ही एक रेलवे लाइन होती है. जैसे ही शीप्स उस पुल को पार कर रही होती है, सेम टाइम ट्रेन वहां से गुजरना स्टार्ट हो जाती है. और जब वो ट्रेन वहां से गुजरती है तो वो हॉर्न बजाती है, जो ट्रेन का जो हॉर्न होता है. और जैसे ही वो हॉर्न बजाती है, जो सबसे आगे वाली शीप होती है वो डर के नहर में गिर जाती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उस पुल से नहर में कूद जाती है. टू द सरप्राइज ऑफ द शेपर्ड, एक एक करके सारी शीप्स जानबूझकर नहर में कूदना शुरू कर देती हैं. पहली शीप गिरी एक्सीडेंटली, डर के, लेकिन बाकी शीप्स जान के, बिकॉज पहली शीप ने, उनको लगा कि यही रास्ता है, यही छलांग लगाई है तो हमें भी यहीं जाना है. एक एक करके सारी शीप्स पानी में कूदने लगी और सारी के सारी नहर में चली गई. कुछ को बचाया जा सका, कुछ को नहीं बचाया जा सका. बट द पॉइंट हियर इज गाइस, दिस इज सेम थिंग हैपनिंग इन आवर लाइव्स. एक शीप आगे चल रही है और उसी शीप के पीछे हम लोग भी चल रहे हैं, बिना ये जाने कि क्या वो हमारी सही डायरेक्शन है या नहीं है. और यही हमारा सेकंड सीक्रेट है. इसीलिए होता क्या है, जब हम उस डायरेक्शन में चलते हैं जो कि हमारी डायरेक्शन नहीं है, देन व्हाट हैपेंस, दैट वी गेट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दैट इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ आवर गोल्स. वो हमारे ड्रीम्स की डायरेक्शन है ही नहीं. जो हमारे ड्रीम्स की डायरेक्शन है, अगर हम उसमें चलेंगे तो कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा. लेकिन जब भी हम अपोजिट चलते हैं तो फ्रस्ट्रेशन आता है. दिस इज द सेम थिंग विच वॉज हैपनिंग विद मी गाइज इन 2012-13, बिकॉज आई वॉज नॉट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ माई ड्रीम्स. लोगों को लगता था इसने आईएएस क्लियर कर लिया है, एक आईएएस ऑफिसर बन गया है. उसके बाद आई वॉज इन प्राइवेट सेक्टर, आई वॉज एट सीनियर पोजिशन, अच्छा पैसा कमा रहा था, घर बार अच्छे से चल रहा था. लोगों को लगा कि भाई इसका तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट दैट वाज नॉट माय ड्रीम. सोशल प्रेशर में आपने कुछ कर लिया, लेकिन आप अपने ड्रीम से जितना दूर जाते जाएंगे उतना फ्रस्ट्रेशन आती जाएगी. तो अगर हम हर्ड मेंटेलिटी को लेकर चलते हैं, विच इज सीक्रेट 2, तो गड़बड़ हो जाएगी. सो सीक्रेट 2 इज पीपल आर अनहैप्पी बिकॉज they are at wrong place. So we need to be in the right place. If we are going in the direction of hurt, obviously we are going in the wrong direction. मेरे साथ सेम चीज हो रहा था, and what I did, I stopped then and there कि भैया यहां रुक जाओ, ये गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं. And then I came back. The very first step is to stop then and there and then come back. Because what happens, these are the desires where you are delighted, you are cheerful, you are happy, and the opposite direction is the direction of hurt. And when we start from a neutral point and we started going towards hurt, the gap started increasing. There is an initial gap between your desires and starting point, but as you go further towards the direction of hurt, the gap starts increasing. और जितना ये इंक्रीज होता जाएगा उतना आपका फ्रस्ट्रेशन. So happiness is a function of gap between what we desire and what we actually achieve, right? So the very first action step is stop then and there. हमेशा जरूर पॉसिबल नहीं होता कि आप उसी समय पे यू टर्न लेके तुरंत उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दो, बिकॉज बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है. द सेम थिंग वाज विद मी आल्सो, एंड आई टुक फ्यू इयर्स टू टेक द यू टर्न, दो आई स्टॉप देन एंड देयर, लेकिन वापस चलने में टाइम लगा. But I knew that I am on the right path.
So this is the second secret I wanted to share with you guys before moving to secret 3. So these two secrets, these are the very powerful thing. If you can understand these things, that you need to have a state of mind which keeps you happy, where you have all the happiness hormones, those hormones, dopamine, oxytocin, serotonin, and endorphins are released. And second is, find out the direction of your dreams, find out the purpose of your life. We all are born with a purpose. Everyone has a purpose. Actually, we need not to make a purpose. It is already there. It is already within us. हमें उस पर्पस को सिर्फ एक्सप्लोर करके ढूंढना है. जब हम छोटे थे हमें पता था, हम खुश होते थे, वी वर ऑलवेज हैप्पी. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारा कॉन्शियस माइंड डेवलप होता गया, लॉजिकल माइंड डेवलप होता गया, सबकॉन्शियस माइंड को हमने साइड में कर दिया. हमारा पर्पस भी वही सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं दब के रह गया. So you need to activate your subconscious mind. You need to find the purpose of your life. And once you get the purpose of your life, start moving in the direction of your purpose. And now comes the secret number 3. Secret number 3 is basically happy people know. Happy people know what is the process to get happiness. They know the secret of happiness. Those people who are happy, either knowingly or unknowingly, they know this secret. So now I am telling you the 3-step happiness rewiring formula, the powerful happiness rewiring formula. What exactly are these 3 steps to get happiness? So are you excited to learn this happiness formula? The 3-step happiness rewiring formula? Just type yes if you want to learn, if you want to excited. Just type yes, excited, in the comment box, in the chat box, if you're excited to learn this 3-step happiness rewiring formula. This is very powerful formula, and I deciphered this formula based on my own experience. Okay, what could be the 3 steps? Sushili is saying yes, Pramiti is saying yes, Kvir, Shweta, Reva, yes. Great guys, Anita is saying yes. So this happiness formula, Om Prakash is excited, Mahi is saying yes, DK is saying want to know, Ketan is restless, saying jaldi batao sir. Great guys. So the very first step is make the blueprint of your happy life. See, it is just like a skyscraper. When you want to make a skyscraper, what is the first thing? What is the very first thing you do? You make the blueprint of that particular skyscraper. So likewise, this happiness is also a skyscraper for our life, and we need to make the blueprints of our happy life. And the very first step is finding the purpose of your life, which we discuss in secret 2. So first you find the purpose of your life. What is the purpose? Which is lying deep down in our subconscious mind. Just start exploring your subconscious mind. Unearth that purpose. निकालो उस purpose को कि किस लिए आप इस life में आए हो. What is that thing doing which you actually enjoy, जिसको करने में मजा आता है, जिसको करके आप कभी थकते नहीं हो. चाहे आपको रात को 12 बजे उठा के कह दिया जाए, आप मजे से उस काम को करोगे. ऐसा कौन सा काम है? Which is your intense desire, you can say, जो आपके अंदर है, उसको निकालना है. उसको निकालेंगे. And once you get that purpose, the next step is you need to align your goals. In fact, before that, you need to set your goals. Most of the people do not have set goals in their lives. बस चलते जा रहे हैं. This is a task oriented approach. हम क्या करते हैं? हम एक डायरेक्शन में चलते जाते हैं बिना सोचे कि हमें जाना कहां है. गोल का हमें पता नहीं. एक जॉब हमने ज्वाइन की, थोड़े दिन वहां पे खुश हुए, फिर लगा यार मजा नहीं आया, दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली. फिर हमने किया कुछ दिन तक खुश रहे, फिर लगा नहीं मजा नहीं आया, तीसरी जॉब ज्वाइन कर ली. इसी तरह से हम चलते जाते हैं. ये पता नहीं करना क्या है. जबकि अगर हमारे पास गोल का हमें पता हो तो वो हमें सामने दिख रहा है कि हमें वहां जाना है. दिस इज माई डायरेक्शन. चाहे मैं सीधा जाऊं, ऐसे जाऊं, किसी भी पाथ में जाऊं, आई विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ माई गोल. And Dr. Michael Olpin says, no, he is a psychologist and
very renowned stress management professional, and he says no amount of stress management technique can help anyone if they do not have goals. कोई भी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक आपको हेल्प नहीं कर सकती है, कितनी मर्जी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक लगा लो, कितनी मर्जी टेक्निक लगा लो, अगर आपके पास सेट गोल्स नहीं है तो। बिकॉज आपके पास अगर गोल्स नहीं है, आपका माइंड अनसर्टेनिटी में घूमता रहेगा, और जब आपका माइंड अनसर्टेनिटी में घूमता है तो देन आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे, चाहे कुछ भी करो। सो फाइंड आउट योर गोल्स। और गोल्स किस फील्ड के लेने हैं? दोज फील्ड्स विच आर इंपॉर्टेंट टू यू, जो आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंस रखते हैं। ऐसी क्या चीजें हैं? फाइंड आउट द टॉप 5 थिंग्स, ओनली 5 थिंग्स, टॉप 5 थिंग्स रैंक वाइज। यू नीड टू नो द hierarchy of that also. This is the first important thing for me. This is the rank number 2, this is rank number 3, this is rank number 4, and this is rank number 5. It can be anything. Normally, what are these 5 things? These are things, these are the health goals, wealth goals, relationship goals, and self goals. In health goals, it can be physical health related and mental health related. So normally these are the top 5 goals, but it can be different for different person. अगर आपके कुछ अलग है, आप उसको अपने अलग बनाएंगे, राइट? फिजिकल हेल्थ आपका क्या है, के गोल्स क्या है? मेंटल हेल्थ के गोल क्या है? फाइनेंस, रिलेशनशिप्स, करियर, सक्सेस के गोल क्या है? रिश्तों के गोल क्या है? और अपने आप के लिए आपके गोल क्या है? चाहे वो आपकी इनर पीस हो, इनर सेटिस्फेक्शन हो, चाहे आपकी सेल्फ एस्टीम हो, चाहे आपका कॉन्फिडेंस हो, कुछ भी। रिश्ते, आप अपनी फैमिली के साथ रिश्ते, अपने फ्रेंड्स के साथ रिश्ते, अपने कलीग्स के साथ रिश्ते, किसी के साथ भी रिश्ते, बिकॉज, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके अपने खुद के साथ रिश्ते। ये सारी चीजें आपको, इन सबके गोल्स आपको पता होने चाहिए, और ये गोल्स अलाइन होने चाहिए आपके पर्पस ऑफ लाइफ के साथ। वंस these are aligned with the purpose of your life, everything is in place. So do this thing as a first step. Find the purpose of the life, align your goals to this purpose, the top 5 goals of the top 5 values of your life, the top 5 things which are important to you in your life. It can be anything, but you need to know that these are the top 5 things for me. Right guys, shall we move further? Great. So second thing is, हमने स्काई स्क्रैपर का एग्जांपल लिया था कि पहली चीज, अगर हमें स्काई स्क्रैपर बनानी है तो हमें उसका ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए, उसका प्लान तैयार होना चाहिए, उसका नक्शा तैयार होना चाहिए। तो सेकंड थिंग इज, नक्शा तैयार हो गया तो हमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी है। फाउंडेशन क्या होनी चाहिए? इट शुड बी ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अगर हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो स्काई स्क्रैपर का क्या होगा? गिर जाएगी, राइट? अब गिर जाएगी तो फिर कुछ नहीं बचेगा उसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बाद सेकंड पॉइंट पे, लेट अस मेक द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। सो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आई गिव यू 3 थिंग्स। द वेरी फर्स्ट थिंग इज क्लियर ऑल द गार्बेज। कहां से? हमारे माइंड से। हमारे माइंड से ये सारा के सारा गार्बेज निकाल दिया जाए। बहुत सारी चीज हम लेके बैठे हुए हमारे माइंड में, बहुत सारी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज है हमारे माइंड में, फियर है, गिल्ट है, फोबियाज हैं। इन सब को हमें निकालना है, क्योंकि जब तक ये रहेंगे ये आपके प्रेजेंट को हैप्पी नहीं होने देंगे। प्रेजेंट को अगर मैं कहूं, प्रेजेंट की स्पेलिंग क्या होती है? प्रेजेंट की स्पेलिंग होती है PRESENT। तो अगर मैं PRE के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दूं, PRE को अलग कर दूं, SENT को अलग कर दूं, तो क्या बना? प्रीसेंट। तो जो हमारा प्रेजेंट है वो प्रीसेंट है, पहले से भेजा हुआ। तो अगर हमारे माइंड में पास्ट के पेनफुल मेमोरीज रहेंगे, पास्ट के फोबिया, फियर रहेंगे, गार्बेज रहेंगे, तो क्या हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो ही ड्राइव करेंगे हमारे प्रेजेंट को। सो वी नीड टू किक आउट ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम आवर माइंड। और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए हैं। इट इज लाइक, जस्ट लाइक दिस, एक चूहा है हमारे घर में और मरा पड़ा है, और वो चूहे की स्मेल पूरे घर में फैल रही है। और आप क्या करेंगे? आप अगर उसको स्प्रे कर देंगे, क्या स्प्रे करने से उस चूहे की स्मेल चली जाएगी? टेम्परेरली यस, लेकिन परमानेंट जाएगी क्या? परमानेंट नहीं जाएगी, फिर आ जाएगी वो।
सो इसको परमानेंट निकालना है हमें, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट थिंग टू मेक द फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग. क्लियर ऑल द गार्बेज. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? लेट मी टेल यू, एक मेरे को इंसिडेंट याद आ गया इस गार्बेज को क्लियर करने के लिए. कहा, एक मेरा क्लाइंट था, आई वॉज कंडक्टिंग ए वर्कशॉप, और उसमें पार्टिसिपेंट था, और द पार्टिसिपेंट वॉज सेइंग मुझे एक मेमोरी बहुत तंग करती है, बहुत परेशान करती है मुझे मेमोरी. मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ. मैंने उसको आगे बुलाया स्टेज पर, और स्टेज पर बुलाकर मैंने उसको एक टेक्निक करवाई. और जब वो टेक्निक कर रहा था, उसकी आंखों से कॉन्टिन्यूसली आंसू बह रहे थे. आंसू बहते जा रहे थे, बहते जा रहे थे, बहते जा रहे थे. ही वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग. मैंने कहा कोई बात नहीं, कीप ऑन डूइंग दिस एक्सरसाइज. और जब वो एक्सरसाइज खत्म हुई, उसकी हंसी नहीं रुक रही थी. ही वॉज स्माइलिंग लाइक एनीथिंग. मैंने कहा उस मेमोरी का क्या हुआ जो आप कह रहे थे मुझे बहुत परेशान करती है, मैं परेशान, पागल हो जाता हूं, परेशान हो जाता हूं, दुखी हो जाता हूं. उसने कहा कौन सी मेमोरी? वो तो मुझे अब याद भी नहीं है. और ये सब हुआ सिर्फ 10 मिनट के अंदर. देयर आर एक्सरसाइजेस फॉर दैट. दिस इज वेरी पावरफुल एक्सरसाइज. सो देयर आर सो मेनी मेथड्स यू कैन डू दिस. Obviously everything cannot be done in 60 minutes of time. So इसको हम मैं आपको बताऊंगा आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन इस सेशन में हम एक्सरसाइजेस नहीं ले पाएंगे बिकॉज वी हैव लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. बट दिस इज द पावर ऑफ these techniques. So next thing is to make our foundation strong is remove all the negativity. There are so many negative thoughts, negative beliefs, limiting beliefs in our mind. और ये नेगेटिव बिलीव्स क्या करते हैं? ये नेगेटिव बिलीव्स हमें, हमारी स्टेट ऑफ माइंड को अफेक्ट करती है. और अगर हमारी स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव हो जाती है, लेट मी टेल यू गाइस, हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है और हम प्रोन होते हैं इन्फेक्शंस के उस टाइम पर. और अगर हमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दी जाए तब हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, राइट? सो हमेशा पॉजिटिव पे सोचो. इनफैक्ट आप ये कभी भी ट्राई कर सकते हो. अगर एक हफ्ते के लिए आप सिर्फ नेगेटिव सोचना शुरू कर दो, आप देखोगे आपको सारी दुनिया में नेगेटिविटी दिखाई देगी. एवरी पर्सन इज नेगेटिव अराउंड यू, एवरीथिंग इज नेगेटिव, एवरी न्यूज इज नेगेटिव. बट अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो तो आपके चारों तरफ आपको पॉजिटिविटी ही दिखाई देगी, पॉजिटिव लोग दिखाई देंगे, राइट? कुछ ना कुछ चीजें चलती रहेंगी, कहीं ना कहीं से हमारे को नेगेटिविटी आती जाएगी. कोई कितने लोग हैं क्राइम पेट्रोल देखते हैं, सावधान इंडिया देखते हैं, सारी नेगेटिविटी देखते रहते हैं, राइट? सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स आवर ओन सेल्फ, कि ये पॉजिटिविटी ही हमें अपने माइंड में लेके रखनी है. ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज पावर ऑफ नाउ. ऑलवेज डू दिस, एक्चुअली इंप्लीमेंट दिस. हमेशा पावर ऑफ नाउ. पावर ऑफ नाउ है क्या? एक एग्जांपल से आपको बताता हूं. कितना परसेंट चांस है कि राइट नाउ अर्थक्वेक आ जाएगा, या ऊपर मेरे छत है जो अभी गिर जाएगी? What are the percentage chances? Right? So the chances are, you know, also know the chances are very very minimal. In fact, almost negligible. या मेरे सामने शेयर आ जाएगा, the chances are very less. So जो फिजिकल डेंजर है या एक्चुअल डेंजर है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं. लेकिन इमेजिनरी डेंजर हम लोग लेके रखते हैं कि ये हो गया तो फिर क्या होगा, ये बीमारी हुई नहीं है, हो गया तो क्या होगा, मेरे को कल को प्रेजेंटेशन देना है मीटिंग में बॉस के सामने, तो मेरा तो बहुत खराब हो जाएगा, ये होगा. भाई हुआ नहीं है, पहले से ही अपने वो इमेजिनेशन में अपनी थिंकिंग नेगेटिव अपनी डाल ली है चीजें. तो पावर ऑफ नाउ का मतलब है कि प्रेजेंट में रहना. अब जैसे अभी हमने बात की, जो चांसेस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक राइट नाउ और फॉलिंग द रूफ राइट नाउ कितने हैं? नेग्लिजिबल. अगर चांसेस नेग्लिजिबल है, दैट मींस प्रेजेंट इज सेफ. अब क्योंकि प्रेजेंट सेफ है हमारे माइंड के हिसाब से, तो माइंड हमेशा प्रेजेंट में खुश रहता है, हैप्पी रहता है और रिसोर्सफुल स्टेज में रहता है. इसीलिए कहा जाता है माइंडफुलनेस को किया जाए. माइंडफुलनेस को अगर हम प्रैक्टिस करें
तो हम पावर ऑफ नाउ में रह सकते हैं। माइंडफुलनेस क्या है? अपनी फाइव सेंसेस को हर समय यूज करना। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट यूज योर फाइव सेंसेस इन प्रेजेंट। अगर आप खाना भी खा रहे हो तो आप अपनी फाइव सेंसेस को यूज करो। आपका ध्यान सारा खाने के अंदर होना चाहिए। आपका जो आप देख रहे हो वो खाना आपका, अपनी आंखों से खाने को देखें, स्मेल करें खाने को, टेस्ट करें खाने को, फील करें, राइट? तो ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो हम माइंडफुलनेस को ऑब्जर्व करेंगे। जो पहले हमें कहा जाता था कि खाना खाने से पहले प्रेयर करनी चाहिए, भगवान का ध्यान करके खाना खाना चाहिए, वो यही था, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करवाते थे हमसे, ताकि हम उस समय रिसोर्सफुल स्टेट में रहें, ताकि हमारा इंटरनल ऑर्गन्स, हमारी बॉडी सारी अच्छे से फंक्शन करें, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करे, हमारे माइंड में पॉजिटिविटी रहे। ये तो सिर्फ खाने के लिए था। कहीं पे भी अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप अपना ध्यान वहीं रखें। हम होता है कि हम जिस काम में हमें करना होता है उस काम को छोड़कर बाकी सब जगह तो हमारा ध्यान होता है, उस जगह पे नहीं होता, तो कहां से हमारा वो काम ठीक होगा? तो दिस इज द थर्ड थिंग इन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, दैट प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, द थर्ड स्टेप इज क्रिएट द जोन ऑफ हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। हैप्पीनेस एंड अबंडेंस का जोन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? स्काई स्क्रैपर का हमने प्लान बना लिया, ब्लूप्रिंट बना लिया, फाउंडेशन बना लिया, अब हमें एक्चुअली स्काई स्क्रैपर बिल्ड करना है। अगर मैं आपसे कहूंगा आप अपनी आंखें बंद कर लें और आंखें बंद करके आप अपने चेहरे को देखें, कुछ सेकंड के लिए आप ये करें, कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करें और अपने चेहरे को देखना शुरू करें। अपने आप को देखें आंखें बंद करके, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। अब आप अपनी आंखें खोल लें। अब मुझे आप बताएं, हाउ मेनी ऑफ यू कुड सी योर फेस क्लियरली? किसको दिखाई दिया अच्छे से और किसको ब्लड दिखाई दिया? एंड हाउ मेनी आर देयर जिनको दिखाई नहीं दिया? आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ब्लड दिखाई दिया होगा या दिखाई ही नहीं दिया होगा। अब एक और एक्सरसाइज करते हैं, दोबारा से आंखें बंद करते हैं और इस बार किसी सेलिब्रिटी का फेस हम देखते हैं। जो भी आपके माइंड के अंदर सेलिब्रिटी है, चाहे वो एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, कॉमेडियन हो, कोई भी हो, सो आप देखें, उस सेलिब्रिटी का फेस देखें। अब आंखें खोल लें। अब बताएं, इस फेस में और आपके अपने फेस में क्या कोई डिफरेंस आपको नजर आया? सेलिब्रिटी का फेस तो आपको बहुत अच्छे से नजर आया होगा। जिनको क्लियर दिखा है अपना फेस, उनको भी सेलिब्रिटी का फेस उससे बेटर नजर आया होगा। अगर नहीं तो बहुत अच्छी बात है। माही को क्लियर दिखा, कॉन्ग्रेचुलेशन माही। प्रज्ञा को नहीं दिखा, प्रमिति को नहीं दिखा, केतन को नहीं दिखा, राहुल आल्सो सेइंग यस। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं दिखता है, बहुत सारे लोगों को दिखता है, और जिनको दिखता भी है सेलिब्रिटी के कंपैरिजन में नहीं उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो यहां पर क्या हो गया? हमें हमारी अपनी सेल्फ इमेज ही हमारी खराब हो चुकी है। अगर सेल्फ इमेज ही खराब है तो हम कहां से हैप्पी रहेंगे? कहां से हम अबंडेंस को पाएंगे? किस तरह से हम एक जोन क्रिएट करेंगे अपने लिए हैप्पीनेस एंड अबंडेंस का? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि अपनी सेल्फ इमेज को इंप्रूव करें। हमें अपनी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नजर आती हैं, बाहर हम कहते हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। आप पूछो किसी से, अपने आप से पूछो, आप कहोगे आई एम इनटू सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स, मेरी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं। होता क्या है, हमें प्रॉब्लम्स तो इतनी बड़ी दिखती है और हमारी सेल्फ इमेज इतनी सी है या इतनी भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? हमें अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करना चाहिए या प्रॉब्लम्स को छोटा करना चाहिए? क्या हम प्रॉब्लम्स को छोटा कर सकते हैं? जिस टाइप यस, यस और नो, हम अपनी प्रॉब्लम्स को छोटा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को छोटा कर पाते तो बहुत इजी होता, बट वो प्रॉब्लम्स हमारे हाथ में नहीं है।
राइट। अब चंद्रशेखर इज सेइंग सेलिब्रिटी तो बहुत अच्छा दिखा, राइट। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सेलिब्रिटी बहुत अच्छा लगा दिखा। सो अब आपने क्या करना है, अच्छा आप सबको एक छोटी सी एक्सरसाइज याद होगी जब हम करते थे बचपन में, स्कूल में खेलते थे, स्लेट थी या जो भी पेपर पे हम करते थे, एक लाइन ड्रॉ करते थे और अपने फ्रेंड्स को बोलते थे इस लाइन को छोटा करके दिखा बिना इस लाइन को रब किए। आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू रिमेंबर दैट एक्सरसाइज। और उसका सॉल्यूशन क्या था, उस लाइन को रब नहीं करना है, उस लाइन को छोटा करना है, दैट मीन्स एक बड़ी लाइन खींचनी है। यही करते थे हम, यही हमें अभी करना है। प्रॉब्लम्स की लाइन को हम छोटा नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी सेल्फ इमेज को हम इतना बड़ा कर सकते हैं कि प्रॉब्लम हमारे सामने इतनी सी लगे, इतनी छोटी सी लगे हमारे सामने प्रॉब्लम, और जब वो प्रॉब्लम्स इतनी सी हो जाएगी तब वो हमारे लिए एक छोटे से कंकर की तरह होगी और हम जस्ट ऐसे ही उसको क्रॉस कर जाएंगे। सो सेल्फ इमेज के लिए मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको दे रहा हूं, जो कि जिसको हम मिरर एक्सरसाइज भी कहते हैं। आप मिरर के सामने खड़े होंगे, लेकिन ऐसे सेम सिंपल तरीके से नहीं। आप मिरर के सामने खड़े होंगे पूरी तरह से तैयार होकर, पूरी तरह से सज धज कर, जैसे आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, पूरी अच्छे से बिल्कुल सूटेड बूटेड, इवन शूज वूज पहन के, बाल अच्छे से करके, अच्छे से पूरा मेकअप वेकअप जो भी करना है, आप अच्छे से तैयार होंगे और अपने मिरर के सामने अपने आप को देखेंगे। आपने अपनी आंखों में आंखें डालकर देखना है, अपने आप को अच्छे से देखेंगे पूरा, और उस इमेज को कैद करके आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे कुछ देर तक, और कुछ देर तक आंखें बंद करके उस इमेज को आप देखते रहेंगे। इस एक्सरसाइज को आप डेली करेंगे और कुछ ही दिनों बाद देखेंगे, आप वो एक्सरसाइज दोबारा करके देखना, जब मैंने कहा था कि आंख बंद करके अपना चेहरा देखो, आप पाएंगे आपका चेहरा इतना बढ़िया, इतना क्लियर और इतना ब्राइट एंड ब्यूटीफुल दिख रहा है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। जस्ट डू दिस एक्सरसाइज रेगुलरली, कुछ दिनों के लिए करना है आपको। 21 दिन के लिए कर लीजिए। कहा जाता है कि 21 दिन में हैबिट बनती है, 21 या 30 दिन, मैं कहता हूं कि 30 दिन के लिए कर लीजिए। 30 डेज तक आप ये एक्सरसाइज करें और आप पाएंगे कि आपकी सेल्फ इमेज एक बढ़िया सेल्फ इमेज बन चुकी है, स्ट्रॉन्ग एंड बिगर सेल्फ इमेज बन चुकी है। सो द फर्स्ट थिंग वाज सेल्फ इमेज यूजिंग विच यू कैन क्रिएट द जोन ऑफ हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। अब बात आती है सेकेंड पॉइंट की इसमें, कि दूसरा पॉइंट क्या है जोन ऑफ हैप्पीनेस का। मैंने कहा था सबकॉन्शियस माइंड हमारा इंपॉर्टेंट है। सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली ड्राइव करता है हमें कहां जाएं। सबकॉन्शियस माइंड एक घोड़े की तरह है और हम उस घोड़े के घुड़सवार की तरह हैं। अगर हमारे हाथ में लगाम नहीं होगी तो घोड़ा हमें कहां ले जाएगा, अपनी किसी भी डायरेक्शन में ले जाएगा। पर अगर हमारे हाथ में लगाम होगी तो घोड़ा कहां लेके जाएगा, जहां हम चाहेंगे। और लगाम से हम कहां लेके जाएंगे, अपने गोल्स की तरफ। तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना है कि भैया ये हैं हमारे गोल्स, हमें इसी के लिए काम करना है, इसी में अलाइन होना है आपको, राइट। इसी में अलाइन होना है और फिर इसी को ही आगे चलते जाना है। तो बेसिकली हमें पैटर्न्स क्रिएट करने हैं हैप्पीनेस एंड सक्सेस के अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा करना है, अपने गोल्स को, जो आपने गोल्स बनाए थे, उन सारे गोल्स को एक सीडी में कन्वर्ट कर लेना है। और जो गोल्स आप वहां लिखेंगे, वो गोल्स लिखने का एक तरीका है, गोल्स बनाने का तरीका ये है कि वो प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए, प्रेजेंट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, एज इफ यू आर ऑलरेडी अचीविंग दोज गोल्स। और उन गोल्स का एक विजुअलाइजेशन बनाएंगे, अच्छा सा विजुअलाइज करेंगे कि यस आई एम अचीविंग दोज गोल्स। और उस विजुअलाइजेशन को बढ़िया तरीके से बनाएंगे। जितना अच्छा क्लियर विजुअलाइजेशन होगा उतनी ही अच्छी फीलिंग्स आएगी आपकी बॉडी के अंदर, और जितनी अच्छी फीलिंग्स आएगी उतना अच्छा आपका सबकॉन्शियस माइंड पकड़ेगा, बिकॉज फीलिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सो आपने की है ये आपका कि गोल्स को विजुअलाइज करते हुए एज इफ यू हैव अचीव्ड दोज गोल्स, और अचीव करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है वो फीलिंग्स आपने लानी है। और इसकी आप एक 2 से 3 मिनट की सीडी, 2 या 3 मिनट की सीडी आप बना लेंगे अपने मेंटल माइंड के अंदर। बेसिकली मेंटल सीडी बना लेंगे अपने माइंड के अंदर, 2 से 3 मिनट की सीडी आप बना लेंगे अपने माइंड के अंदर। सो इट विल बी एक मेंटल सीडी फॉर यू। और इस मेंटल सीडी को आपने रोज रन करना है जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप।
बिकॉज उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल होता है, बिकॉज कॉन्शियस आपका डाउन हो रहा होता है सोने के टाइम पे, बिकॉज कॉन्शियस इज पावरफुल व्हेन योर फाइव सेंसेस आर एक्टिव। जब पांचों सेंस आपकी सोने के टाइम पे सेंस आंखें बंद हो जाती हैं, सब कान वगैरह ये बंद होने लग जाते हैं, फाइव सेंसेस आपकी बंद हो जाती हैं, तो अंदर की सबकॉन्शियस की फाइव सेंसेस आपकी पावरफुल हो जाती है। हालांकि सबकॉन्शियस 24/7 एक्टिव होता है, लेकिन कॉन्शियस उसको ब्लॉक कर देता है चीजों को। कॉन्शियस एक बेसिकली डोबरमैन खड़ा हुआ है, डोबरमैन सबकॉन्शियस के दरवाजे के आगे, और वो चीजों को सबकॉन्शियस तक नहीं जाने देता अंटिल अनलेस द बोथ आर अलाइंड। लेकिन रात को वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस में चली जाएंगी जब आप सोते हुए उसको करेंगे, उस मेंटल सीडी को रन करते हुए आप सो जाएंगे, और सुबह उठते ही पहला काम ये करें। ये दो दो टैबलेट्स हैं जो आपको लेनी है रात को सोते समय और सुबह उठते समय, और फिर देखिए किस तरह से मैजिक होगा। विद इन फ्यू डेज योर माइंड विल चैनलाइज योर सेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स। तब कोई आपको प्रोक्रास्टिनेशन नहीं आएगा, तब कोई आपको लो मोटिवेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ऑटोमेशन में चलेंगे, आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहेंगे, आप सब काम अपने गोल्स के हिसाब से करेंगे, एंड you will be enjoying your life like anything, and this will create a zone of happiness and abundance in your life, abundance and happiness in all the important fields which you have selected for yourself. So guys, this was the thing which I wanted to share with you. These are the 3 secrets which changed my life, and I am not a special person. If it can change my life, it can change yours too. It is a very simple formula. I just summarize this formula. So basically this happiness formula is, okay, let us say the secret one. Let us start from the secret one. Secret one was कि happiness is a state of mind, and it is basically an external and internal balance. And the second secret was people are unhappy because they do not know where to go. They are at the wrong place. So find out which is your right direction, go into that direction. And the third secret is follow the process. And that is the 3-step happiness rewiring formula. The first step is make your blueprints, align, find your purpose and align all your goals with that purpose. Second is make your foundation strong, clear all the garbage, remove all the negativity, and enjoy the power of now. Practice the power of now. Third thing is create a zone of excellence for yourself. That is, improve your self-image and create the zone of happiness and abundance in your mind. So these were the 3 secrets which I wanted to share with you guys.